Good morning students. We'll start with our next lecture of final account. Now this is an unsolved sum from your textbook. You can see the question. Already I have marked those things which we are supposed to write in first column. Okay. ये आपके टेक्स्ट बुक का ही अनसॉल्व सम है. विच नंबर आई एम नॉट अवेयर. विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द ट्रायल बैलेंस. यहाँ पर भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. We'll start with the debit side of the trial balance. What is given first? Purchase. Purchase, you know, where we write purchase, we write in trading account, debit side. तो यहाँ पर मैंने trading account prepare किया है. इसके debit में मैं लिखूँगी 2, एक लाइन छोड़ देते हैं opening stock के लिए. 2 purchase account. If you want, you can write. We'll write the amount in first column 35,500. ये हो गया हमारा. टिक मार्क करते हैं क्योंकि अगर कुछ छूट जाता है तो आप फिर बाद में बहुत बवाल करते हो. देन वी हैव सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेप्टर्स. वी आर सपोज टू राइट इन बैलेंस शीट. एसेट साइड आपको दिखाई दे रहा होगा. विल यू कैन राइट ऑन फर्स्ट लाइन ऑल्सो. नो हार्ड एंड फास्ट इशू. सन्ड्री एसेट्स. okay, instead of asset we'll write sundry debtors. 40,000 will write the amount in first column because adjustment will be there. Then after debtors we have sales return. Sales return आपको पता है हमें क्या करना है. सेल्स में से माइनस करना है. ये हमारा क्रेडिट साइड है. बाय सेल्स लेस रिटर्न और फिर हम अमाउंट लिख के रखेंगे. जब हम सेल्स लिखेंगे तभी हम माइनस कर देंगे. यहाँ तक क्लियर हुआ. आफ्टर सेल्स रिटर्न वी हैव ओपनिंग स्टॉक. Again, you know, it is written in trading account. So here we'll write 2 opening stock. And then we'll write the amount in second column 18,100. यहाँ तक clear हो गया होगा सबको. After that we have bad debts. आपको पता है ये पुराने bad debts है तो हम यहाँ पर लिख रखेंगे 2 bad debts. This is my P&L account. That is profit and loss account. 2 bad debts 500. Whatever is given in adjustment that will write afterwards. Then we have land and building. स्टार मार्क किया है मतलब एडजस्टमेंट है. आप सन्ड्री डेप्टर्स जहाँ पर लिखा है उसके नीचे हम लाइन छोड़ देंगे. लीव 4 to 5 lines because adjustments are there. Then we'll write land and building. Amount will come 25,000. After land and building we have furniture. Furniture we don't have any adjustment. We'll leave one line for depreciation. और फिर हम लिखेंगे furniture. Furniture का amount है 20,000 which can be written in second column. Furniture के बाद में है discount. Discount आपको पता है हम कहाँ लिखते हैं. We write in profit and loss account and this is my profit and loss account. Here I will write 2 discount. Okay, and 1,000 I will write in first column only. Why? That I will explain you afterwards. Discount के बाद में आई royalties. Royalties आपको पता है trading account. Purchase के नीचे return आने वाला है so we'll write and keep less return and then you can write 2 royalties. And the amount of royalties is 700. After royalty we have rent. Rent, you know where we write our profit and loss account. Discount के नीचे लाइन छोड़िए. 2 rent 1,900. After rent we have salary. रेड मार्क किया है यानी कि एडजस्टमेंट है. रेंट के नीचे आप लिख सकते हो 2 salaries 3,000. leave one line. Then we have next thing wages. Wages यहाँ पर royalties लिखिए उसके नीचे हम लिख सकते हैं 2 wages that is in our trading account. 2 wages and wages का amount है 800. wages के लिए भी adjustment है. Okay. After wages we have insurance. Insurance again profit and loss account. दिस इज माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सैलरी के नीचे आप एक लाइन छोड़ दीजिए इंश्योरेंस एंड देन वी विल राइट द अमाउंट
1500. The sum of final account is too big, so it's very difficult because बार बार मुझे बुक यहाँ पर वहाँ पर पेज करना पड़ता है क्योंकि एक पेज में ये सम आता नहीं है. उसके बाद में इंश्योरेंस के बाद में आपको अगर आप दिखाई देगा यहाँ पर वी हैव ड्राइंग. सो वेयर वी आर सपोज टू राइट ड्राइंग इन आर liability side will write drawing, and drawing, before writing drawing, will give you a heading capital. Here we will write Reena, first partner's name, then I will leave 2-3 lines, then I will write Aarti, and here you will write less drawing. Here also you will write less drawing. 2 places you are supposed to write drawing. The amount of drawing is 2000, and here you will write 1000. Okay, completed till here. We have drawing, then we have cash at bank, cash in hand. बैलेंस शीट एसेट साइड दिखाई दे रहा है. फर्नीचर के नीचे आप लिख सकते हो कैश एट बैंक 11,500. You can write the amount, sorry, in second column, and then you can write cash in hand 2,000. We completed with our debit balance. Now we'll go for the credit side. What is given first? Sales. Sales again our trading account हमने already लिख के रखा है 58,200 minus 1,000 you will get 57,200. Okay, सेल्स कंप्लीट होने के बाद में है हमारे पास क्रेडिटर्स. स्टार मार्क किया है यानी कि एडजस्टमेंट है. क्रेडिटर्स ड्राइंग के नीचे लाइन छोड़ के आप लिख सकते हो सन्ड्री क्रेडिटर्स. लायबिलिटी साइड है ये मेरा. क्रेडिटर्स 25,700 in first column. Why? Because we have adjustment. उसके बाद में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा we have purchase return. Purchase return you are supposed to write here. यहाँ पर ऑलरेडी रिटर्न लिख के रखे हैं मैंने 500 रिटर्न. 35,000 will be the amount which we are supposed to write outside. अब परचेस रिटर्न के बाद में आया RDD. which is this? This is our old RDD. What it is? It is our old RDD. तो यहाँ पर हम लिख के रखेंगे. ये बैड डेब्ट्स दिखाई दे रहे होंगे. Less old RDD. And what is our old RDD? It is 800. Okay. पूरा फॉर्मूला होने के बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे. Then we have discount, but only 50 rupees. Trading profit and loss account credit side by discount. Now in this sum we have discount on both the side. One is received, one is allowed. यहाँ तक हो गया. कमीशन अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइन छोड़ दो क्योंकि एडजस्टमेंट है. बाय कमीशन 250. वी कंप्लीटेड टिल ईयर. बचा हमारा कैपिटल. कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है. वहां पर हम लिख लेंगे 50,000 फर्स्ट वन, 30,000 सेकेंड वन. वी हैव डन विद आर ट्रायल बैलेंस. हमारा कंप्लीट हो गया. कुछ नहीं बचा हुआ है. अब एक एक करके हमको एडजस्टमेंट लेना है और आपको पता है हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आपको देने हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज रिगार्डिंग, रेड पेन से हाईलाइट करके आपको बताती हूँ. इट इज रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 22,000. अब आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक वी राइट इन 2 प्लेसेस. फर्स्ट वन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सो दिस इज माय ट्रेडिंग अकाउंट. सेल्स के नीचे मैं लिख सकती हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक. वन इफेक्ट 22,000 डायरेक्टली इन सेकेंड कॉलम. देन बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक. दोनों इफेक्ट अब तक समझ में आ गए होंगे. 5 सम हो गए हैं तो अब तक आपको समझ में आया होगा कहाँ कहाँ पर लिखना है. We done with our first adjustment. Now we'll go for the second one. Write off 900 as bad and doubtful debt. That is your new bad debts. And RDD is 1,000. तो पहला इफेक्ट हम डेटर्स में ही करते हैं. डेप्टर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है. लेस न्यू बैड डेप्ट्स. लेस न्यू RDD. And both are given in amounts.
So we'll write in amount 900 and here 1000. दोनों माइनस करने के बाद में हमारे पास अमाउंट जो आएगा वो है 38,100. इनका सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. P&L अकाउंट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर. बैड डेब्ट्स, add new bad debts, add new RDD. Bad debts is R 900, new RDD is 1000. यहाँ पर टोटल हो गया ऐड करने के बाद में इन तीनों को 2400 दिखाई दे रहा है. 800 माइनस करने के बाद में आपके पास यहाँ पर बचा 1600. ओके, टू इफेक्ट क्लियर. नाउ विल गो टुवर्ड्स द थर्ड एडजस्टमेंट. दो एडजस्टमेंट हमने कर लिए. क्रिएट डिस्काउंट फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. डेप्टर्स पर भी डिस्काउंट क्रिएट करना है. कितना? 3%. क्रेडिटर्स 5%. तो पहला इफेक्ट हम बैलेंस शीट में ही करते हैं. ये हमारा डेटर्स है. यहाँ पर हमको रिजर्व फॉर डिस्काउंट, दिस वी हैव टू क्रिएट. रिजर्व फॉर डिस्काउंट एट व्हाट रेट ऑन डेटर्स? एट द रेट ऑफ 3% ऑन डेप्टर. यानी कि 38,100 का आपको 3% निकालना है. इट विल कम 1,143 रुपीज़. ऑलरेडी मैंने निकाला था इसलिए मुझे पता है. माइनस करने के बाद में आपके पास अमाउंट बचेगा यहाँ पर 36,957. उसी तरीके से क्रेडिटर्स पर भी रिजर्व फॉर डिस्काउंट, लेकिन यहाँ पर एट द रेट ऑफ 5% है. यानी कि 25,700 का 5% आपको फाइंड आउट करना है. इट विल कम 1,285. माइनस करने के बाद में अमाउंट आएगी 24,115. ये हो गया दोनों का एक एक इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट, इट विल गो इन आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर आपने देखा होगा हमने दोनों साइड में डिस्काउंट लिख के रखा है. यहाँ पर हम ऐड करेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स ऑन डेबिट साइड एंड here reserve for discount on creditors. Okay, debit side debtors discount, credit side creditors discount. और डेटर का डिस्काउंट है 1,143 और इसका डिस्काउंट है 1,285. 50 रुपीज़ ऐड करने के बाद में 1,335. ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ. देन वी हैव थर्ड एडजस्टमेंट भी कंप्लीटेड. नाउ इन द फोर्थ एडजस्टमेंट दे हैव गिवन आउटस्टैंडिंग. क्या क्या आउटस्टैंडिंग है? वेजेस एंड सैलरी. एक ट्रेडिंग अकाउंट में है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी हैव. सो फर्स्ट विल गो टुवर्ड्स ट्रेडिंग अकाउंट. एड आउटस्टैंडिंग. How much wages is outstanding? 700. Here we get 1,500. उसी तरीके से सैलरी का भी ऐड करके फिर दोनों का इफेक्ट देते हैं. ऐड आउटस्टैंडिंग. How much outstanding? This is 800. So here we'll get 3,800. Second effect, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. क्रेडिटर्स के नीचे आप हेडिंग दे सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, wages, salaries. Wages is 700, salary is 800, total 1,500. ओके, यहाँ तक हमारा हो गया. अभी फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या दिया है? इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स. और यहाँ पर हम कितने मंथ का खर्चा है इंक्लूड करते हैं? ओनली फॉर 12 मंथ्स. यानी कि अगर आप देखोगे तो 3 मंथ्स इट इज़ प्रीपेड. और ये साल कब स्टार्ट हुआ हमारा? 1 अप्रैल 2018 को. यानी कि 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च तक का हम यहाँ इंक्लूड करेंगे. आफ्टर दैट अप्रैल, मई, जून, ऐसे 3 महीने के लिए वो क्या हो गया? प्रीपेड हो गया. अब इंश्योरेंस वेयर वी राइट? इंश्योरेंस वी राइट इन आर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ इंश्योरेंस ऑलरेडी लिखा है.
ये 1500 इज फॉर 15 मंथ्स डिवाइडेड बाय 15, एक महीने का हमको इंश्योरेंस मिलेगा 100 रुपीज, तो 3 महीने का प्रीपेड कितना होगा 300 रुपीज। यहां तक क्लियर हुआ। लेस प्रीपेड for how many months? 3 months. And how much it will come? 300 rupees. 1500 divided by 15, 100 per month. तो 3 महीने का कितना हुआ 300 रुपए, तो यहाँ बचे 1200। इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारा बैलेंस शीट एसेट साइड, हियर विल राइट प्रीपेड इंश्योरेंस। यहाँ तक क्लियर हुआ। And what is the prepaid insurance? It is 300 rupees. Now, two adjustment more are left. One is depreciation और एक दिया है इनका कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग वी आर सपोज टू डेप्रिसिएट at what percent? At the rate of 5%. On 25,000 at the rate of 5% it will come 1,250. माइनस करने के बाद में अमाउंट बाहर लिखना है 23,750। सेकेंड इफेक्ट अगेन आर P&L अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इट विल कम 1,250 रुपीज। अब लास्ट में दिया है कि हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल रेशियो है, तो कैपिटल क्या है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल इज 5:3, सो आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:3 रेशियो। इसमें हमको नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस इज ओनली फॉर नेट प्रॉफिट, सो विल स्टार्ट क्लोजिंग आवर अकाउंट नाउ। तो सबसे पहले जो अकाउंट क्लोज करेंगे वो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। दिखाई दे रहा होगा वी हैव ओनली 2 थिंग्स, सेल्स एंड देन वी हैव क्लोजिंग स्टॉक। दोनों का टोटल करेंगे और लिखेंगे 57,200 प्लस 22,000 इट विल कम 79,200। सेम टोटल विल राइट हियर। In from this 79,200 will minus 18,100, 35,700 और 1,500 माइनस करने के बाद में हमारे पास जो बच जाएगा वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, और माइनस करने के बाद में हमारे पास अमाउंट आ रहा है 23,900। इसमें से ये सारा माइनस करने के बाद में ये हमारा बैलेंसिंग फिगर। ये हम P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख के रखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 23,900। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। P&L अकाउंट में देखोगे तो क्रेडिट साइड में बेसिकली ओनली 3 अमाउंट वी हैव 23,900, 1,335 एंड 250 रुपीज। तीनों को ऐड करके टोटल हम नीचे लिखेंगे। तीनों को ऐड करने के बाद में हमारा जो टोटल आ रहा है वो है 25,485। द सेम विल राइट ऑन डेबिट साइड ऑल्सो। और इसमें से आप 1,600, 2,143, 1,900, 3,800, 1,200 और 1,250 माइनस करने के बाद में हमारा बैलेंस आ रहा है 13,592, which has to be distributed in the ratio 5:3 between the partners. So we'll write here 2 net profit, okay, and then we'll write the name. क्या नाम है इनके? रीना एंड आरती। 5:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में फर्स्ट वन विल गेट 8,495, सेकेंड वन विल गेट 5,097। टोटल हो गया इतना। सेकेंड इफेक्ट जाएगा इनका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एड नेट प्रॉफिट and again add net profit. Now we'll write the net profit. First one 8,495, second one 5,900
एंड टोटल विल राइट आउटसाइड, यहाँ पर आया 56,495, ईयर विल गेट 34,097। और इसका टोटल दोनों साइड का पहले आप ये 1 2 3 4 इसका टोटल करके नीचे लिखना है, और फिर यहाँ का टोटल करके नीचे लिखना है। योर बैलेंस शीट टोटल इज कमिंग 1,16,507 ऑफ बोथ द साइड। सम आपको सॉल्व करना है, अनसॉल्व सम है। जहाँ पर डाउट है ये टोटल है, जहाँ पर डाउट है आप जब मैं लाइव लेक्चर लेती हूँ गूगल मीट पर, दैट टाइम यू कैन आस्क इट हाउ टू फाइंड द बैलेंस शीट टोटल। यू नो, जैसे हम नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 उसका टोटल आएगा इतना, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 and 7 the same total. बैलेंस शीट शुड टैली। इफ योर बैलेंस शीट टैली, उसका मतलब है कि आपका जो सम है वो एब्सोल्युटली राइट है। अगर आपकी बैलेंस शीट टैली होती है यानी कि आपने जो भी सम किया है वो एकदम आपका एक्यूरेट है, ये मीनिंग होगा उसका। सो व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली। Whenever you have doubt, you can ask me in Google Meet. Go through it very nicely. Okay? Best of luck. Thank you.